talking about muscles, no? Because whenever we talk about locomotion, so first thing will be the framework of the body. So that is bone, or you can say skeletal system will be there. Skeletal system. This is the very much important thing. Next thing which will be required for the movement is muscles, because 1 minute, because if any organism want to move, so what it will need it, that organism will need some kind of muscles also, because they will have to contract them, they will have to relax them, and just to attach these two kinds of bones also, they will need a kind of muscle. So now if we are talking about the muscles, so the study of muscle can be called myology. Not only myology it will be called, it can also be called sarcology, right? And all the different kinds of muscles which are there inside the body. And if we are talking like what is their origin, so we can say this thing that their origin is mesoderm, right? अंदर वाली सबसे जो बिल्कुल या फिर बीच वाली जो लेयर है आपकी बॉडी की, that will be responsible for the development of muscles in the body. You have heard this thing that we people are having different kinds of muscles in the body, and all these different kinds of muscles are responsible to perform a specific function in your body. Let us take an example of your heart, and if we talk about your heart, so heart contain different or a unique kind of muscles in it which will be branched. इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिलेंगे, बट व्हेन यू विल कंपेयर दिस कार्डियक muscle over there with skeletal muscles, right? The muscles which will be there on your bones, that will be responsible to hold and to connect your bones also. This will be totally different from this one, from the cardiac one. So how these different kinds of muscles developed, what is their function, that we need to understand. और उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि सारे जो muscles हैं, they all are having a different kind of flexibility. They will be able to you can say they will be able to contract, they will be able to show elasticity also, because whenever you will do some kind of exercise, your muscles are showing you contraction and relaxation too. So around 40 to 50% of the body weight will be contributed by the muscles. This is true fact. So if we are talking about like 80% of the body contain what, 80% are the muscles over here in the body, and most of them, like for example this one, smooth muscles, where it will be there in your veins or other vessels. Not only in the veins, it will be there in the arteries also. So muscles will be everywhere, and because of that you won't be able to move also. There are different kinds of muscles in the body. First is voluntary muscles. These voluntary muscles are also known as skeletal muscles. Like if I will ask you कि चलो वहाँ से उठिए और आप अपनी जगह पर जाइए, है ना? So if you will show this kind of movement, that movement will be according to your wish. आप जब चाहेंगे तभी तो चल पाएंगे, तो ये पॉसिबल होगा. इट विल बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर वॉलेंट्री मसल्स ओनली. सो वॉलेंट्री एक्शंस मीन्स व्हाट, ऐसी एक्शन जो आप करना चाहें, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू. इट विल बी कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन, और ये वॉलेंट्री एक्शन विल बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर skeletal muscles only, right? This is clear to you. Second type of muscles which are there are showing involuntary actions in your body. Involuntary action, like for example the movement of fluid inside your body, and the movement of any kind of other medium which will be there inside your body. It will be possible because of smooth muscles which will not contain any kind of striations on it.
it will be present in the vessels of your body, or the which will be responsible, because they will be tightly packed, there will be no space between them, so that will be smooth muscles, but you won't be able to control the movement of such kind of muscles. Third, cardiac muscles, the movement of heart, or you can say the muscles which are there in the heart, you won't be able to control them. Why? क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं? क्योंकि आपके जो ब्रेन, आपका जो ब्रेन है, brain contain a specific part in it, that part of the brain will be able to control, will be able to send a message to your heart, and that will be helpful to control the heartbeat over there and the blood pressure also. So these are the different kinds of muscles. So these two, cardiac and smooth, these two are involuntary. Involuntary means what? You won't be able to control them. आप चाहें तो भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, whenever, जब आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इस वीडियो को देखते समय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज ऑल्सो गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी. उसी के साथ में एक्सक्रीशन भी होता जा रहा है. लेकिन ये एक्सक्रीशन कहाँ पर हो रहा है? द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इनसाइड योर बॉडी. जो यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पे विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी, all that urine which will be formed because of the filtration of the blood over there is going to be stored inside your urinary bladder. और जब वो urinary bladder में जाके store होता है, you won't be able to control it and you won't be able to feel it कि हाँ अब वो वहाँ पर move कर रहा है. Whenever it will get full, then only you will get to know कि हाँ वो अब full हो चुका है. So these are the different kinds of muscles बच्चों. Now we need to see this thing, that what it contain, like what is the composition, what things will be responsible to make such kind of muscles. So first we are going to discuss about voluntary muscles. Muscles which will work according to your wish. ऐसे मसल्स जो केवल आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं. इफ़ यू वांट टू वॉक, यू विल बी एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ योर वॉलेंट्री मसल्स. अगर आप नहीं चल पाते हैं या फिर आपके बॉडी पार्ट में कोई आपका ऐसा पार्ट है विच यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल, इट विल बिलोंग टू वॉट? इट विल बिलोंग टू इनवॉलेंट्री मसल. नाउ वॉलेंट्री मसल, सो वॉलेंट्री मसल जिसको मैंने बोला था skeletal muscle also, it can also be called skeletal muscles, you will be able to control it. Where these voluntary muscles will be there, so these are the locations on which such kind of muscles, which kind of muscles, voluntary muscles will be there inside your body. So you can see your jaw area also, your shoulder area also, your chest area also, your arm, your thighs, your toe part. All these different parts of your body contain these voluntary muscles, and because of these muscles only you will be able to control the movement of your body. You will be able to control whatever work you want to do, you will be able to do because of such kind of skeletal muscles only. Next, they all are related to each other, and what kind of thing or how these muscles are designed, that we need to discuss over here. So here is the picture. With the help of this you will be able to get to know. I told you this thing that they are having some kind of striations on the body, some kind of linings will be there. और ये जो lining है, you are able to see कि इसमें कुछ ऐसा है which is responsible to show such kind of lining. वही हमको समझना है that why these striations are there, and because of that striations only these muscles, these voluntary muscles or skeletal muscles, these are also known as striated muscles. What it is known as? It is also known as striated muscle. Now we need to discuss like how these muscles are formed. I told you this thing that striated muscles which are here in the body, or skeletal muscles are also known as striated muscles. No, so now we need to understand कि कैसे ये striated muscles कहलाएं. That we will have to discuss. No, अब देखिए striated I told you, then the transverse line which will be there, or it will be there on the regular interval, है ना, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, equal दूरी पर you will be able to see some kind of lines over there. Transverse line इसको बोला है, and because of these
lines on these muscles. These are also known as stripped और striated muscles. This is very much important बच्चों. क्यों ये कहलाए हैं striated? क्योंकि उनके पास में ट्रांसवर्स लाइन है ना. ये ट्रांसवर्स लाइन क्यों बनी है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं. सो दीज लाइन्स और दीज मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल for the locomotory action of your body and the changes which you want, like whenever whatever kind of posture you want, whenever you will take a photo, whenever you will take a selfie with your friends, you will show different kinds of pose and the posture also. So that will be possible because of what? It will be possible because of your voluntary muscles only bachcho. Now you should be thankful to these kind of muscles also because they are not charging you anything for that, only they are taking some kind of some food and energy from your body. Second, these are responsible to control, this will be controlled by according to your willpower only. Whenever it will be needed, whenever someone will be there to encourage you, whenever someone will be there to motivate you, you will be able to come out from that particular box in which you were working, and you will be able to do the work which you wanted to do. इसीलिए ये मसल क्या कहलाए? वॉलेंट्री मसल्स. उसके बाद में द मसल फाइबर्स आर देयर. देखिए मसल फाइबर क्या है? तो काइंड ऑफ लेयर और काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इट विल बी, जो कि क्या कहलाया है? एंडोमाइसियम. व्हाट इट इज नोन एज endomysium. So where this endomysium will be there, you can see over here this kind of muscle belly will be there, and this muscle belly will contain these kind of bunch of some kind of fibers over there. So देखिए we are taking one bunch of these muscles over here and you will be able to see this is your endomysium. endomysium क्या है? कनेक्टिव टिश्यू. मतलब देखिए यहाँ पे जो आपको बीच में द रेड कलर थिंग you will be able to see, no, that is the connective tissue over there which will be responsible to supply something over here to the muscles, and this endomysium is very much important over here. So endomysium is there just between your single muscle fiber, right? Here is the single muscle fiber, but here you will be able to see a bunch of muscle fibers, and in between that muscle fiber what will be there? Endomysium will be there. Next, many muscles fibers, they are going to combine together in a group together they will be, and it will be known as fasciculi. What it will be known as? It will be known as fasciculi or fascicle. तो देखिए this is your fascicle, and a bunch over there will be known as fascicle over there. और ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप का नाम क्या है बच्चों? fascicle है. आपको सारी terms you will have to remember because many questions can be framed on this topic. Fasciculi is going to be covered by the connective tissue, जो कि क्या कहलाया बाद में? पेरीमाइसियम. एंडोमाइसियम क्या था? जो अंदर था, और जो बाहर वाली कवरिंग विच विल बी देयर. देखिए ये यहाँ पर आपके एंडोमाइसियम इज हियर, दिस इज द एंडोमाइसियम, एंड द आउटर लेयर विल बी नोन एज पेरीमाइसियम. Pericardium also you people know. Pericardium was what? Outer covering of your heart. So here mysium is your muscle and peri means the outer layer. So outer layer of your connective tissue or these fasciculi will be known as perimysium. Next is many fasciculi, they are going to combine, right? This many fascicle are going to combine together to make a muscle over there, and just like this your muscles will be formed, your muscles will be designed. So muscles which are going to be covered, right, it will be covered by the connective tissue, it will be known as epimysium. So where this is this epimysium, so you can see over here fascicle, this is your fascicle part. One particular myofibril or muscle fiber is here, this is the muscle fiber, and many muscle fiber are going to form a muscle, but the inner connective tissue which are there, it will be known as what? Endomysium, which will be there outside the fiber. Then the outermost layer will be known as perimysium, and the
external layer which is going to cover all these things, all the muscles over there, it will be known as epimysium. Now these three terms, endo, peri and epimysium, is clear to you. The muscle fibers, they are going to attach together, they are going to be toughly connected, or they are going to make a tough cord over there of a connective tissue that will be known as tendon. So they are going to make a stuffed kind of structure over here. This will be known as tendon, and this is going to connect with your bone, right? So this is also known as bone muscle, also striated muscle also. Finally it will be connected, like here I told you this is going to attach with a bone. Next is this structure, like how these muscles are going to be straightened, how these muscles are going to be formed, that we will have to see. Because in a muscle, not only a single thing will be there, many things together are going to form, many things together, many protein or designs will be there which will be responsible to make your muscles. So here is the structure. You will be able to see that here you can see these are the myofibrils over here, sacroplasm also, and now if you will see this one single unit which will be known as myofibril. Myofibril we are going to see, and some kind of other filaments will also be here that we will have to see. Now after this this one, अब आप लोग कई लोग आप में से जिम जाते होंगे और जिम जाने के बाद में अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस करते होंगे ताकि आपके मसल्स जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए. मसल्स स्ट्रॉन्ग आप कैसे बना रहे हैं? बाय सिंपली डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, और बार बार ये जो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा बच्चों, उसके कारण आपके मसल्स, देखिए मसल्स हो क्या रहे हैं, आप जब उनको एक्सरसाइज आप करते हैं तो मसल्स में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है. आप यहाँ पर वही चीज़ें समझ रहे हैं, है ना? यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? आप सबसे पहले तो स्केलेटल मसल के बारे में समझ रहे हैं कि स्केलेटल मसल है कैसे. आपको पहले स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, उसके बारे में उसके बाद में ये समझना पड़ेगा कि वो मसल बना कैसे. जब आप ये समझ जाएंगे कि वो मसल बना कैसे है, आप उसके बाद में ध्यान देना होगा कि उसके अंदर जो स्ट्रक्चर वहाँ पर है, जो उसका फ्रेमवर्क है, वो किस तरह से वहाँ पे काम कर पाता है, और उसमें ये रिलैक्सेशन और जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उस मसल में, है ना, वो किन कारणों से होता है, दैट यू विल गेट टू नो. तो अभी आपको समझना है कि स्केलेटल मसल है कैसा. तो वो सिलेंड्रिकल है, वो ट्यूबुलर है, और अगर आप उसके शेप की बात तो ये हो गई है. उसके बाद में अगर आप बात करेंगे कि उसकी लेंथ कैसी है, तो वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं. अनब्रांच्ड मतलब जैसे कार्डियक मसल जो है वो काफ़ी आपको ब्रांच्ड देखने को मिलेगा. जैसे मान लीजिए ये एक मसल है, तो इसी मसल में से आपको एक ब्रांच यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, है ना. तो ये एक ब्रांच्ड मसल हो गया जो कि कार्डियक मसल होगा. ऐसा मसल ये नहीं होता. इट विल बी अ सिंपल मसल, सीधा सा लंबा सा एक मसल होगा ये, और उस पर कई सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएंगे. इस तरह से इस पर कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे. साथ ही साथ इस पर कुछ आपको इस तरह से स्ट्रिप्स पे देखने को मिलेगी. दीज काइंड ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड विल बी देयर ऑन दिस मसल, है ना. तो ये चीज़ हमको यहाँ पे समझ में आई. उसके बारे में और बात करते हैं कि इसके अंदर क्या है. तो देखिए इसके अंदर अगर आप इसके बाहर वाली परत को देखेंगे, सो ये सबसे बाहर वाली जो परत है बच्चों, दिस विल बी नोन एज सार्कोलेमा, है ना. सबसे बाहर वाली जो परत है दिस विल बी नोन एज सार्कोलेमा. ये सार्कोलेमा कहलाती है, और इसी के अंदर बहुत छोटी छोटी सी आपको यूनिट्स दिखाई देती है. दिस यूनिट विल बी मायोफिब्रिल, है ना. ये क्या आपको दिखाई देती है? दिस विल बी मायोफिब्रिल. और ऐसे बहुत सारे मायोफिब्रिल के जो बंच है, जो क्लस्टर्स हैं, वो आपको यहाँ पर अरेंज देखने को मिलते हैं. उसी के साथ में आपको बीच में इन सारे मायोफिब्रिल्स को यहाँ पर एनर्जी की जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनके लिए पहले से यहाँ पर व्यवस्था है. यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और एटीपी ओवर देयर, है ना. जब भी देखिए, जब भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको पहले खाना खाना होता है. आप जब बढ़िया से खाना खा लेते हो, सो यू विल बी एबल टू वर्क प्रॉपरली. वैसे ही तो यहाँ पर ये जो मायोफिब्रिल्स हैं, इनमें जब इनके जो ये पैरेलल लाइंस हैं, इनमें जब आगे और पीछे की तरफ जो मूवमेंट देखने को मिलेगा,
दिस मूवमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स, है ना। ये हमको यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद में बच्चों इसके बीच में जो यहाँ पे फ्लूइड होता है वो होता है सार्कोप्लाज्म, वो एक लिक्विड होगा। और ये बीच में जो आपको यहाँ पे लाइंस जो दिखाई दे रही है, दीज लाइंस विल बी नोन एज डार्क बैंड, है ना। ये जो है एक डार्क बैंड है, उसके बाद में आपको अल्टरनेट बैंड आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग बैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर इनकी बेंडिंग को आप समझें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर एक मायोफिब्रिल को हमने निकाला और उसको इस तरह से समझा तो वो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। देखिए ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको इस पे देखने को मिला एक कनेक्टिविटी के लिए। और ये हमको सभी को पता है कि जब भी मान लीजिए आप अगर जिमिंग कर रहे हैं तो आपके जो ट्रेनर होंगे दे विल सजेस्ट यू टू टेक अ काइंड ऑफ प्रोटीन डाइट, है ना। आपको प्रोटीन डाइट लेने के लिए वो हमेशा बोलते हैं। तो ये प्रोटीन ही तो है जो यहाँ पर मसल्स के डिवीज़न के लिए, आपकी बॉडी में सेल के डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसी के कारण आपकी बॉडी ठीक तरह से सही समय पे रिकवरी और ग्रोथ शो कर पाती है। तो बच्चों इसमें अलग अलग बैंड हमको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे ये कुछ पैरेलली यहाँ पर अरेंज्ड है। इसमें दो प्रोटीन खास तौर पे हमको यहाँ पर देखने को मिलता है ना, जो कि हम बोल सकते हैं फोर्स प्रोटीन, इट विल बी नोन। तो देखिए यहाँ पर थिन एक्टिन फिलामेंट हमको देखने को मिल रहा है, पतले वाली ये एक्टिन फिलामेंट है। और दूसरी तरफ थिक जो है, थिक मतलब जो मोटे मोटे हैं, है ना। तो थिक फिलामेंट जो जिसको हम लोग बोलेंगे मायोसिन, थिक वाला मायोसिन और थिन वाला एक्टिन, ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी याद रखना है बच्चों। थिन विल बी एक्टिन एंड थिक विल बी, मोटा वाला विल बी मायोसिन, है ना। ये याद हुआ। उसके बाद में जब इनके अरेंजमेंट की बात करते हो तो आपको यहाँ पे अलग अलग बैंड्स या फिर अलग अलग डिस्क यहाँ पे दिखाई देती है। जो इन दोनों के बीच की जो कनेक्टिविटी है दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड ओवर हियर बाय दिस जिगजैग पोर्शन ओवर हियर। ये जो जिगजैग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जिगजैग स्ट्रक्चर जेड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसीलिए इसको जेड डिस्क बोला गया, है ना। इसको क्या बोल दिया हमने, जेड डिस्क। जेड डिस्क जो है वो एक कनेक्टिविटी का काम करती है, ये इलास्टिसिटी का काम करती है और दोनों डिस्क को जोड़े रखने का काम ये यहाँ पर करती है। जब दोनों ही ये थिक और थिन जब आपस में मिलते हैं तो ये यहाँ पर एच जोन यहाँ पे फॉर्म करना है। ये भी हमको इतना समझ में आया, आप इसको धीरे धीरे करके भी और जानेंगे। इन सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन जो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, ये मेम्ब्रेन बनी है कोलेजन फाइबर की। कोलेजन फाइबर यहाँ पर है ना। तो ये देखिए इसमें सार्कोप्लाज्म की जब हम बात कर रहे हैं कि भैया सार्कोप्लाज्म है कैसा, ये आउटर मोस्ट लेयर, उसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। इट मीन्स इट विल बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। उसके बाद में बच्चों ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको समझाया, मायोफाइब्रिल्स आपने देखा, और यहाँ पर इनको सबको अपनी जगह पे जोड़े रखने के लिए और सही जगह पे बनाए रखने के लिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम SR के नाम से यहाँ पे डिनोट करेंगे। न्यूक्लियस यहाँ पर बहुत सारे हैं, है ना। पेरिफेरल मतलब उसकी सतह पर हमको देखने को मिलेंगे। और ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड है, और इनके पैरेलल अरेंज होने के कारण इनकी ओवरलैपिंग और वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर होने के कारण वहाँ पर डार्क और लाइट लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। इनके अरेंजमेंट के कारण ही इस तरह की लाइन या बैंड हमको दिखाई देता है। ये लाइन जो है इनके अल्टरनेट ऑर्डर होने के कारण बनती दिखाई देती है, ये आपको याद रखना होगा। ये जो लाइंस है बच्चों, ये लाइन दो तरह के प्रोटीन से यहाँ पे बनी हुई है। मैंने अभी आपको समझाया था इसके बारे में, एक्टिन और मायोसिन, है ना। ये दो प्रोटीन जो बड़े काम के हैं आपके लिए। और ये दोनों ही प्रोटीन जो है ये कैसे प्रोटीन है, ये फिलामेंटस प्रोटीन है। इनके कारण क्या बनते हैं, वहाँ पर जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो फिलामेंटस प्रोटीन कहलाते हैं। और ये फिलामेंटस प्रोटीन ये दोनों ही मिलके यहाँ पर बनाते हैं। एक्टिन फिलामेंट की हम बात करें सबसे पहले, है ना। तो एक्टिन फिलामेंट कैसा दिखाई देता है,
और मायोसिन फिलामेंट कैसा दिखाई देता है, तो ये हमारे पास में ये एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम उसका यहाँ पर आपको दिया हुआ है। एक्टिन फिलामेंट, ये देखिए, ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दिस इज योर एक्टिन फिलामेंट। ये जो एक्टिन फिलामेंट है उसके आसपास आपको एक रैपिंग आपको दिख रही है, एक रस्सी जो है वो ऐसे आसपास, उसके आसपास घूमती हुई इस तरह से दिखाई देती है। ये मान लीजिए ये अगर आपका एक्टिन है तो इस एक्टिन के ऊपर इस तरह से आपको एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्यों है? ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर इसलिए है ताकि ये जो नीचे जो थिक वाला मायोसिन आपको दिखाई दे रहा है और ये ऊपर थिन वाला एक्टिन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो यहाँ पर ट्रिप्नोनिन या फिर ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल जो आपको दिखाई दे रही है, जो रस्सी जो यहाँ पर बंधी हुई दिखाई दे रही है, ये इसको इस पर अटैच होने से रोकती है। ये क्या है? ये रस्सी इसको यहाँ पर अटैच होने से रोकती है। ये क्या है? ये यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स है जिनके कारण यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी, एक बॉन्ड देखने को मिलेगा, और ये हमेशा इसके ऊपर इस तरह से ये मूव करते हैं, है ना। ये स्लाइडिंग आपको इस पर देखने को मिलेगी। इसकी एक थ्योरी भी है जो इससे आगे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल क्या करते हैं? इस बॉन्डिंग को, इस वाली साइट को यहाँ पर अटैच होने से रोकता है। ये स्ट्रक्चर कैसे बना उसके बारे में भी आप अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये ट्रोपोनिन की भी बात कर लेते हैं। तो ये ट्रोपोनिन जो है, 3 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, TTC, TTI, TTI और TTT। ये 3 आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर ट्रोपोनिन के देखने को मिलेंगे। ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स वहाँ पर होंगे। ये भी प्रॉपर साइट अवेलेबल कराते हैं जहाँ पर ये बॉन्डिंग हो पाती है। देखिए यहाँ पर आपको ये अटैच्ड दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अभी इसके बारे में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो लाइट लाइन जो यहाँ पर बनती है, लाइट लाइन और बैंड यहाँ पर जो बन रहा है, ये बना है केवल एक्टिन फिलामेंट के कारण। एक्टिन के कारण लाइट बना। लाइट, एक्टिन कैसा था? एक्टिन थिन था। एक्टिन कैसा था? एक्टिन थिन फिलामेंट है ना। तो ये जो बेंडिंग हमको यहाँ पर दिख रही है, इट विल बी मोनो रिफ्रैक्टिव। ये कैसी होगी? मोनो रिफ्रैक्टिव होगी, या फिर पोलराइज्ड लाइट इसमें से आप इसके पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करता हुआ आपको दिखाई देगा। इसीलिए इसको आइसोट्रॉपिक बैंड के नाम से भी जाना जाता है ना। आइसोट्रॉपिक, अब आइसोट्रॉपिक बोला इसलिए शॉर्ट में हमने उसको बोल दिया है कि इसको आई बैंड बोलेंगे। आइसोट्रॉपिक बैंड उसने बनाया है, लाइट बैंड है, पोलराइज्ड लाइट वहाँ पे फॉर्म होती है, मोनो रिफ्रैक्टिव है, तो ये आई बैंड के नाम से जाना गया। उसके बाद में बच्चों कि ये जो हर एक सेंटर आपको दिखाई देता है, यहाँ पे आई बैंड आपको अभी दिखाई देगा। उसके बाद में उसके बीच में इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जेड बैंड है ना। देखिए अभी यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देके रखा है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर कैसा है। तो यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका आई बैंड है ना। आई बैंड के बाद में जहाँ पर ये कवरिंग आपको बहुत कम दिखाई दे रही है, जो ये पूरी तरह से ओवरलैपिंग जहाँ पर नहीं है, इट विल बी एच जोन, जहाँ पर पूरी तरह से ओवरलैपिंग नहीं है। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पर थिक वाला मायोसिन है, थिक वाला मायोसिन है, और ये थिन वाला फिलामेंट है ना। कौन सा थिन वाला, कौन सा है? एक्टिन यहाँ पर है बच्चों। तो थिन और थिक ये दोनों ओवरलैपिंग कंडीशन में अगर है तो आप इसको ओ बैंड के नाम से भी जान सकते हैं, या ओ रीजन मतलब ओवरलैपिंग रीजन भी आप इसको बोल सकते हो। तो ओवरलैपिंग रीजन ये है, दोनों साइड को कनेक्ट करके रखने के लिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर जेड डिस्क बीच में दिखाई देती है। यही जेड डिस्क जो है ये इलास्टिक फाइबर कहलाता है। इलास्टिसिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर होता है ना। तो ये जेड लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जो दोनों को अटैच एक दूसरे से हमेशा करके रखती है। ये जो थिक फिलामेंट आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, ये थिक फिलामेंट
ए बैंड के नाम से जाना जाएगा। देखिए ये वाला बैंड जो है ये ए बैंड आपको कहलाया। कहाँ से कहाँ तक? इस लाइन से Z के बीच से लेकर यहाँ से दूसरे इस तक, जहाँ पर ये पूरी बॉन्डिंग पूरी कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे थिक और थिन दोनों की बॉन्डिंग जहाँ पर कंप्लीट होती है, दोनों की ओवरलैपिंग जहाँ तक है, वो ए बैंड है ना। तो ये ए बैंड यहाँ पे बना। और इसके बाद में बच्चों देखिए उसके बाद में ये भी है कि हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल ऑफ दीज बैंड, वहाँ पर हमको एम बैंड देखने को मिलेगा। मायोसिन थिक बैंड हमको देखने को मिलेगा। इसको ए से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। और फिर आई और ए जो है ये अल्टरनेटिव मायोफिब्रिल्स हमको यहाँ पर लेंथ पूरी लेंथ ये मायोफिब्रिल्स की हमको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये कैसे आपको दिखाई देता है? द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन, दो सक्सेसिव जेड लाइन जो आपको यहाँ पर दिखेगी, उन दोनों के बीच में, है ना, आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर इनके कारण ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी की लेंथ कम हो जाएगी या किसी की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। किसी की लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये ओवरलैपिंग वाला एरिया कम और ज़्यादा यहाँ पर होता चला जाता है। केवल उसी में यहाँ पर डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे फंक्शनल यूनिट जो है कॉन्ट्रैक्शन की, वो कहलाता है सार्कोमियर। क्या कहलाता है? इट विल बी नोन एज सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है? ये वो फंक्शनल यूनिट है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, एक्सरसाइज करने में आपके मसल्स जब कॉन्टैक्ट हो रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन इस वाले एच जोन के कारण या फिर ओवरलैपिंग जोन के कारण यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर जेड लाइन जो देखने को मिलेगी, है ना, ये जेड लाइन जो इलास्टिसिटी वहाँ पर मेंटेन रखती है, ये इलास्टिसिटी को मेंटेन रखेगी, उनको अपनी जगह पे बनाए रखेगी। तो ये पूरा जो आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज सार्कोमियर। सार्कोमियर के को समझने के लिए आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं बच्चों कि दोनों चीज़ें यहाँ पर है। एक तो ओवरलैपिंग वाला या फिर रिलैक्स वाला और कॉन्ट्रैक्ट वाला, दोनों तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिला है कि कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच दोनों तरह का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है वो कैसे बन जाता है, उसको समझते हैं। तो देखिए ये एक्टिन जो है, एक्टिन कैसा है? एक्टिन जो है वो थिन है और आपका यहाँ पे मायोसिन ये ब्लू से यहाँ पे डिनोटेड है ना। इसमें देखिए आप यहाँ पे गौर करना कि ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट यहाँ पे कितना है। उसके बाद में देखो अब ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट बढ़ गया, मतलब क्या हुआ? आपका मसल हो गया है कॉन्ट्रैक्टेड, है ना। रिलैक्स जब हुआ तो फिर से जो एक नॉर्मल वहाँ पे ओवरलैपिंग थी वो वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से एक्टिन और ये मायोसिन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपका ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेंगे। आप देखिए आगे कैसे होता है। तो सार्कोमियर जो है उसको यहाँ पर फंक्शनल यूनिट बोला है, किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए। एक सार्कोमियर जो है उसके अंदर आपको एक ए बैंड और दो हाफ आई बैंड देखने को मिल जाएंगे। अगर इसके लेंथ की बात करोगे एक सार्कोमियर की, सो इट विल बी अराउंड 2.5 माइक्रोमीटर्स। और ये जो आपका आई बैंड है वो होता है आपका 1 माइक्रोमीटर का। मायोसिन की लेंथ यहाँ पर 1.5 mm होती है। देन मायोसिन के अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो एक मायोसिन स्ट्रक्चर क्या है? वो 6 एक्टिन फिलामेंट से कवर्ड होता है। मतलब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। बेंजीन के जितने भी एंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे एक्टिन फिलामेंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अलग अलग रंग से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ दैट व्हाट एंड हाउ दिस थिंग विल बी। तो अगर ये सारे कोने पे हम एक्टिन फिलामेंट को इमेजिन करें तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और इसके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके बीच में एक मायोसिन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि सभी तरह से इस तरह से कनेक्टेड होता है ना। तो ये आपका एक मायोसिन फिलामेंट 6 अलग अलग एक्टिन फिलामेंट से कवर्ड हो गया या कनेक्टेड हो गया।
उसके बाद में अगर आप किसी एक सिंगल एक्टिन की बात करते हो तो ये 3 मायोसिन फिलामेंट से कवर्ड हो जाएगा। 3 मायोसिन फिलामेंट मतलब ये तो ट्रायंगुलर शेप वहाँ पर बन जाना चाहिए। तो ट्रायंगुलर शेप कैसे बन रहा है बच्चों? देखिए, ये मैंने आपको बेंजीन वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे समझाया, और ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, ये जो है आपका ये एक्टिन है, और ये 3 रेड कलर के डॉट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दिस इज मायोसिन। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? ये मायोफिब्रिल फिलामेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। छोटे छोटे फिलामेंट आपस में मिलकर यहाँ पे मायोफिब्रिल फॉर्म करते हैं। बंडल ऑफ मायोफिब्रिल आपका सार्कोमियर का फॉर्मेशन करता है। बंडल ऑफ सार्कोमियर जो है वो वहाँ पे मसल का फॉर्मेशन करेगा, और आपको पता है कि आपके मसल्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको समझने के बाद में अब जेड डिस्क की बात कर लेते हैं। जेड डिस्क ये वही वाला पार्ट है जहाँ पर एक इलास्टिसिटी उसको प्रोवाइड की जाएगी, जो जिगजैग पोर्शन आपको देखने को मिल रहा था, ये जेड डिस्क वाला पोर्शन, जिसमें आपको क्या देखने को मिला? यहाँ पे एक्टिनिन प्रोटीन देखने को मिला, और इसी एक्टिनिन प्रोटीन के कारण बच्चों यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है वो हमको इसमें देखने को मिलेगी। अगर आप इनके इस सार्कोमियर की बात करें, इसके एनाटॉमी की बात करें, तो ये कैसा दिखाई देता है? ये कुछ इस तरह से है ना। देखिए यहाँ पे ए बैंड मैंने आपको समझाया, ए बैंड कहाँ से कहाँ तक है? एक आई बैंड, दूसरा एम, और यहाँ पर आई, है ना। इस तरह से हम इसको समझते हैं। क्या क्या है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर ये वाले आपके एक अलग बैंड ये है ना। ये बैंड आपको कैसा दिखाई दे रहा है? आपको उसको और सिंपल में बना के बताता हूँ। ये आपको डार्क वाला दिखाई दे रहा है, ये डार्क बैंड है। उसके बाद में ये वाला जो बैंड है, दिस इज लाइट बैंड, है ना। ये वही स्ट्रिएशंस हैं जो स्केलेटल मसल में देखने को मिलते हैं। हम अभी उन मसल्स की बात कर रहे हैं जो आप अपनी विल के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पूछा कि क्या आप वहाँ से खड़े होकर आप बॉटल दे सकते हैं? यू विल बी एबल टू गेट अप, एंड वॉट एवर वर्क योर पेरेंट्स विल आस्क यू टू डू, यू विल बी एबल टू डू, है ना। बड़े आसानी से आप कर पाते हो, या तो किसी के ऑर्डर से या अपनी विश के अकॉर्डिंग। तो ये बेंडिंग यहाँ पर जो देखने को मिलती है, ये जो बैंड्स यहाँ पर देखने को मिलता है, इन्हीं बैंड्स में आपको स्ट्रेच और रिलैक्स, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण इसकी लेंथ कम या ज़्यादा होती हुई दिखाई देगी। और इसी आई बैंड और एच बैंड या फिर ओ बैंड में हमको यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा या कम होने के कारण क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अगर हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे हुआ, तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक्टिन कैसा था? ये थिन फिलामेंट था, है ना, पतला सा फिलामेंट था। उसके बारे में यहाँ पे समझना होगा कि ये बना कैसा है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, और इसको मैंने आपको किस तरह से बताया था कि मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका एक्टिन है ना। इस एक्टिन के ऊपर यू विल बी एबल टू सी दिस पार्ट, है ना, ये जो रस्सी जैसा पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई देता है, दिस इज नोन एज ट्रोपोमायोसिन, है ना। तो देखिए, अगर इसके ऊपर हम इसको यहाँ पे इस तरह से रैप कर देते हैं तो क्या होगा? नीचे अगर कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा तो ये रैपिंग जो है उसको अटैच होने से रोकेगी, है ना। ये अटैचमेंट कब होगा? देखिए, अगर ये प्रॉपर कनेक्टेड है ना, ये प्रॉपरली रैप्ड है, तो नीचे से कोई भी दूसरा प्रोटीन यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना पाएगा, और जब बॉन्ड नहीं बन पाएगा मतलब ये अभी रिलैक्स मसल है ना। जब ये यहाँ से हटेगा या इसकी साइट में कोई चेंज आएगा तो नीचे से दूसरा प्रोटीन विल बी एबल टू अटैच, और उसके अटैचमेंट के कारण देयर विल बी अ काइंड ऑफ मूवमेंट बिटवीन बोथ दीज फिलामेंट्स, है ना। ये फिलामेंट की तो बात कर रहे हैं। इन फिलामेंट्स के बीच में आप देखेंगे कि इसमें इस तरह से स्लाइड मूवमेंट देखने को मिलता है, और ये जो स्लाइड मूवमेंट जो देखने को मिलेगा, इसी के कारण आपके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो पाते हैं। तो इस एक्टिन में हमने देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है एफ एक्टिन।
है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर आपको ये ट्रोपोनिन भी मैंने आपको बताया था, है ना। उसके बाद में ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिला, मैंने आपको अभी पेन के एग्जाम्पल से बताया था, ट्रोपोमायोसिन इट विल बी, जो कि क्या करता है, बॉन्डिंग को वहाँ पर रोकेगा। हर एक एक्टिन जो है वो कैसा है, काफ़ी ज़्यादा नैरो है, उसमें 2 एंड आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारे जो है ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ये सारे के सारे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर, वही बात यहाँ पे कि आसपास उसके एक हेलिकल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा एफ एक्टिन के आसपास, जो पॉलीमर्स हैं, है ना। और ये पॉलीमर जो है ये बने हैं छोटे छोटे ग्लोब्यूलर प्रोटीन के कारण। बहुत सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है वो आपस में जुड़े तो उन्होंने एक चेन वहाँ पर फॉर्म करी, और ये जो चेन बनी है वही तो आपकी एक्टिन है ना। जब ये 2 फिलामेंट आपस में जुड़ रहे हैं ना, तो एक प्रोटीन वहाँ पे बना रहे हैं, ट्रोपोमायोसिन जो है वो भी उसके साथ में, उस पूरे एक्टिन के साथ में चलता चला जाता है, पूरी उसकी लेंथ को कवर करता हुआ। ये अभी आपको मैंने स्ट्रक्चर में समझा दिया। उसके बाद में बच्चों, ये जो प्रोटीन आपका, जो ट्रोपोनिन जो आपको देखने को मिला था, ये भी कुछ रेगुलर इंटरवल पे उस ट्रोपोमायोसिन के साथ में आपको अरेंज देखने को मिलेगा, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जब आप रेस्टिंग स्टेट में होते हैं तो ये सारी जो प्रोटीन्स हैं वो अपनी जगह पे होते हैं और अपनी अपनी बाइंडिंग साइट पे वो प्रॉपरली अटैच्ड या अरेंज्ड होते हैं। अब देखिए, जब भी आप इस ट्रोपोनिन की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 सब यूनिट जो मैंने आपको समझाई थी, 3 सब यूनिट्स है कौन सी? सबसे पहला ट्रोपोनिन आई, है ना, जिसको अपन टी आई के नाम से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ट्रोपोनिन आई। दूसरा है ट्रोपोनिन टी, है ना, ट्रोपोनिन टी को हम टी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ट्रोपोनिन सी, टी सी, टी आई, टी सी। ये आपको याद रखना। टी से क्या है? टी का मतलब ट्रोपोनिन, आई का मतलब इनिबिटरी साइट है। इनिबिटरी साइट मतलब ये वहाँ पर अलाव नहीं करता है अरेंज होने के लिए, अटैच होने के लिए, इनिबिटरी साइट है ना। उसके बाद में यह है ट्रोपोमायोसिन साइट, जहाँ पर वो आके नीचे से अटैच हो पाएगा। अटैच क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उस पर वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना। उसके बाद में ये आपको CA बाइंडिंग साइट है। देखो यहाँ पे कैल्शियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में। पैराथायरॉइड नाम की ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के साथ में ये अरेंज्ड होती है, पेयर्ड वहाँ पर होती है, और ये पैराथायरॉइड जो है आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल आपके बॉडी के फ्लूइड में मेंटेन करके रखता है। तो अगर यहाँ पर कैल्शियम का लेवल अगर कम हो जाता है तो उसी के कारण कुछ लोगों में हमको लकवे जैसी शिकायत देखने को मिलती है। वो अपने मसल्स को ठीक से मूव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगी है उनकी पूरी बॉडी में, उनके मसल्स में। अब ये कैसे हुआ है? क्यों उनको लकवा या फिर उनके मसल्स क्यों काम करना बंद कर देते हैं, आप आगे इसको समझ पाएंगे, है ना। आपको ये चीज़ें अप्लाई जब आप इसको करेंगे, देन ओनली यू पीपल विल बी एबल टू गेट टू नो, और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। क्योंकि आप केवल इसको एज अ टॉपिक पढ़ेंगे, सो दिस विल नॉट बी ऑफ एनी काइंड ऑफ यूज़, लेकिन आप इसको जब समझेंगे और अपने लाइफ में आप उसको उतारेंगे, सो यू विल बी एबल टू यूज़ इट समवेयर whenever it will be required। तो 3 यूनिट हमने यहाँ पर देख ली बच्चों। 3 यूनिट क्या करती है? अभी आपको ये तीनों जो यूनिट मैंने अभी समझाई है ना, ये तीनों यूनिट आपको अभी कहाँ पे काम आएगी? जब वो दोनों एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर जब स्लाइड करेंगे, जब मूवमेंट करेंगे, तो उसी मूवमेंट में ये तीनों साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में मायोसिन की बात आती है। एक्टिन कैसा था? वो थिन था, है ना। थिन, क्या थिन? फिलामेंट। क्योंकि बहुत सारे फिलामेंट आपस में मिलके आपके मसल को फॉर्म कर रहे हैं, है ना। कई बार जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, दे विल बी एबल टू गेट टू नो दिस थिंग कि वो जो रेशे वहाँ पर दिखाई देते हैं,
किसी मसल में, वो फिलामेंट ही है ना। तो देखिए यहाँ पर मायोसिन फिलामेंट की हम बात कर रहे हैं, जो कि कैसा है, थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट कैसा दिखाई देगा, ये इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये वही स्ट्रक्चर है जो नीचे की तरफ वहाँ पे अरेंज था, है ना। और जो हमने इनिबिटरी साइड अभी देखी थी ना, TI, TC और TT, ये 3 यूनिट जो है वो यहाँ पर अटैच होने के लिए, देखिए यहाँ पर अभी आपको एक्टिन बाइंडिंग साइट देखने को मिली। एक्टिन बाइंडिंग साइट आपने कहाँ पर देखी, ये इसके हेड वाले रीजन में, है ना। तो यहाँ पर कितनी बाइंडिंग साइट हो गई, यहाँ पर 2 बाइंडिंग साइट हो गई, यहाँ पर 2 बाइंडिंग साइट हमको देखने को मिली, है ना। उसके बाद में नीचे ये जो कॉइल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्रॉस आर्म, है ना। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्रॉस आर्म, क्योंकि इसमें दोनों जो ये फिलामेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहे हैं, वो यहाँ पर अरेंज्ड है। इसके साइड में भी एक बाइंडिंग साइट है जहाँ पर ATP आके अटैच होता है, इसीलिए इसको ATP बाइंडिंग साइट बोला। अब यहाँ पे ATP का क्या रोल है, क्योंकि हमने जब अभी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल समझा था बच्चों, हमने देखा था कि वहाँ पर उनके साथ में, उन फिलामेंट्स के साथ में, उस मायोफैब्रिन के साथ में वहाँ पर क्या प्रेजेंट था, वहाँ पर प्रेजेंट था आपका माइटोकॉन्ड्रिया, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है।